Hello students, welcome to Kenny's Educare, a group of Kenny solutions. Today we will be studying about nutrition and diet, which is lesson number 7 in your textbook. Okay, nutrition क्या होता है अभी? You know our body needs energy to do work, है ना? To attend the class, to do your homework, to play. Okay, for all this thing we need energy, right? And वो energy कहाँ से आता है? If we take all the nutrition, all the nutrient which are required for our body to do all the functions properly. Okay, so that is called as nutrition and diet. Now you know आपने सुना होगा जो बहुत ज़्यादा फैट होते हैं, दो people who gain weight, हाँ वो क्या बोलते हैं? I'll go on diet, but that doesn't mean that is the diet. Now diet is a word which describes how you will eat your food. Okay, so that will come under diet. That is, in the morning you should have moong matki, in the afternoon you should have 2 chapatis, small amount of rice, dal, 1 green leafy vegetable. Okay, and then in the night while sleeping you should drink 1 glass of water, and also in the morning, okay, you have to drink 1 glass of milk. Okay, so that is the diet that you follow. Okay, if you eat 3 times a day, that is you take 3 meals a day, so that is your diet. Okay, so here you will be studying about nutrition and diet and what is important for your good health, and what are the nutrients that our body need, and what type of diet do we need to follow. Okay, so this whole thing you will be studying in this lesson. So let's start. So can you recall which are the various groups of foodstuffs? Do you know different foodstuffs? Now when mama goes to market, you might have visited with her, right? So you can see that there are vendors, they sell vegetables. Some of the vendors they sell fruits. Some of the vendors they sell this moong, matki, cereal, dals, rice, right? And then you see that some of the vendors they sell this fish, various types of fish, right? And some of the shopkeepers they sell meat, egg. Then the dairy, there they store milk, butter, cheese, है ना? So we see that different stalls are there, and these are the various foodstuffs that are available in the market. And why they are available in the market? Because they provide us with the essential nutrient that are required for us. Okay, and यहाँ पे diet की बात आ रही है ना, तो you should always have a adequate and proper diet. Because अगर आपका diet, if you're not taking your diet properly, what will happen? You will not get energy for doing any kind of work. आपको energy नहीं मिलेगी, आपके काम नहीं होंगे, and what will happen? You will fall sick, and इसके वजह से क्या होगा? आप अपने काम नहीं कर पाओगे, right? है ना? So these are the disadvantages, and that is why you should have your diet properly, and you should include all the foodstuffs and all the vitamins, minerals that are required by your body. Okay, now can you name the ones which you can see in the picture? See, these are the fish, this is the meat, then egg, then you can see butter, right? Then these are the fruits, then foodstuffs and vegetables, right? These are the pigs that you can see in the picture. Now can you tell me that which main constituent of the food that we get from them? What do we get from eating them, and what is the benefit we get after eating them? See, everyone works for the food, right? Why everyone works? Because they want to have a food, they want to have good life, है ना? So these are the essential things that are needed. These are the basic need, and food is one of our basic need, because you cannot live without food, air and water, right? Now see, living things, they take food and water and they use them for variety of purposes, है ना? हम खाना एंड पानी अलग अलग चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं. सो वी यूज़ देम फॉर ऑब्टेनिंग द एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ द बॉडी. ना आपकी बॉडी ग्रो करती है ना. जब आप 1 साल के थे, दैट टाइम यू आर स्मॉल, पर धीरे धीरे आपका हाइट इंक्रीज़ हो रहा है, राइट? फिजिकली एंड मेंटली यू आर इंक्रीजिंग इन बोथ द वेज. तो food, why do we need food? Because we want energy, and if we get energy,
we can do all our work, and also the growth of our body takes place, है ना. Your height will increase, your weight will increase if you have a proper adequate diet. Okay, then to carry out day to day functions of the body. अब आपकी बॉडी में कौन से डे टू डे फंक्शंस होते हैं? सी, वन इज़ रेस्पिरेशन प्रोसेस. रेस्पिरेशन किसको बोलते हैं हम? द प्रोसेस थ्रू विच यू टेक इन एंड टेक आउट. सी, द प्रोसेस थ्रू विच यू टेक इन ऑक्सीजन and you give out carbon dioxide. That process is called as respiration process. Okay, then another process which happens in your body is excretion process, the process through which your body eliminates the waste material. Okay, so that process is called as excretion process. Then our body performs the function of circulation. Circulation कैसे? सी, आपको पता है ना आपके पूरे बॉडी में ब्लड फ्लो करता है, राइट? सो ब्लड का काम क्या है? टू कैरी आउट द ऑक्सीजन टू ईच एंड एवरी सेल्स ऑफ द बॉडी. ठीक है, तो ये काम ब्लड का है. सो सर्कुलेशन प्रोसेस इसको बोल दिया हमने. देन देर आर वेरियस प्रोसेसेस विच अकर्स इन योर बॉडी, एंड वो प्रोसेसेस को अच्छे से करने के लिए हमारे बॉडी का हर एक ऑर्गन दे शुड फंक्शन प्रॉपरली. फॉर दैट रीज़न आवर बॉडी नीड्स फूड. देन टू फाइट अगेंस्ट डिजीज़ेस. आपने देखा होगा अगर कभी कोई बीमार होता है, व्हाट हैपन्स टू देम? अगर वो बीमार है तो यू विल गिव देम ऑल द फाइबर्स, विटामिन्स, मिनरल्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर देम. आप उनको नारियल पानी दोगे, यू विल गिव देम फ्रूट्स, यू विल गिव देम देयर फूड प्रॉपरली, है ना. उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है बिकॉज दे आर इल. सो इफ़ यू वॉन्ट टू फाइट अगेंस्ट डिजीज़ और इफ़ यू आर इल एंड you want to get well, what you will do? You will have to take a proper diet. Okay, so in living thing, the process of taking in food and water and using it for growth and other purpose is called as nutrition. Okay, तो हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, हम लिविंग थिंग्स के अंदर जैसे हम खाना एंड पानी intake करेंगे, and that food and water, it is being utilized for the growth of our body and for other purposes. Now for other purposes it means to carry out various functions of our body that are essential. Okay, तो ये essential चीज़ें carry out करना through the body by taking in food and water. So this process is called as nutrition process. Okay, and जो भी food आप खा रहे हो which is useful for this process, that is called as nutrients. Okay, so I hope you are clear with the definition of nutrition and nutrients. Now what are the nutrients and what are foodstuffs? See, there are 6 main nutrients. हमारा जो खाना होता है, what do you eat in your afternoon lunch time? See, we eat one type of vegetable, we eat chapati, right? We eat rice, we eat dal, है ना. So these are the things that we eat. We eat मूंग, मटकी, wheat, है ना. These are the various things that we include in our diet. But basically there are 6 main nutrients which are important for our food. And what are the 6 main nutrients that are important? Those are carbohydrate, fats, proteins, fiber, vitamins and minerals. Okay, so these 6 main nutrients, they are required by us in our food, and this nutrient, they are present in different food item that we eat in differing proportion. See, आप तो खाना खाते हो ना, आपको नहीं पता कि उसके अंदर कितना न्यूट्रिएंट है, कितना कार्बोहाइड्रेट है. Now I want you all to do one thing. The biscuit or the wafer or anything that you eat, just check. आप देखोगे उसके wrapper पे this all things are written. You will see on the wrapper that it is written as carbohydrate कितना है, fat कितना है, protein कितना है, and you can get to know कि how much carbohydrate, protein, fat, fiber, vitamins and minerals you are taking in. Okay, तो हम जब खाना खाते हैं हमें पता नहीं है कि हम कितने proportion में इसको खाते हैं. So the nutrient that we take in through the food, they vary. ठीक है, अगर आपने रोटी खाई है तो ऐसा हो सकता है कि रोटी के अंदर विटामिन नहीं है, बट दे कंटेन लॉट ऑफ प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट. ओके, तो ऐसे करके आपको पता नहीं चलता, बट यू टेक इन एवरी 6 मेन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम योर फूड.
Okay, so let us learn more about them. So here you will be studying about the 6 main nutrients in detail. So we will start with the carbohydrate, which is also called as energy giving nutrient. So whenever you will eat carbohydrate, this carbohydrate, it will give you energy. Okay, so our main need is of energy and it is fulfilled by carbohydrate. Now as I told you, अगर सपोज आप 2-3 दिन खाना नहीं खाओगे, व्हाट विल हैपन, आपके पास एनर्जी नहीं होगी ना कोई भी काम करने के लिए. यू विल फील लाइक यू कांट डू दैट वर्क बिकॉज यू डोंट हैव दैट मच ऑफ एनर्जी, है ना. तो ये मेन एनर्जी हमें कहाँ से मिलता है? वी गेट द एनर्जी व्हेन वी ईट कार्बोहाइड्रेट, and carbohydrate is the only one thing that is energy giving nutrient. Okay, hence our diet includes a large proportion of cereals in the form of rice, chapati, roti, bakri, bread which contains carbohydrate. Now अब तक आप चपाती, राइस, बाकरी खाते थे, आपको पता था that राइस, बाकरी, चपाती, bread it gives you energy? No, na. So this all thing that you eat daily, it contains energy, and that is the reason we eat it every day. Okay, hence this foods, they are called as carbohydrate giving food, means energy giving food, because whenever you will eat such things, it will give you energy to do your work, to do your task on time. Okay, now second one is fat. Now have you heard someone saying कि I am becoming fat day by day, है ना. This has become the most common thing that we hear from people, है ना. वो fat होते जाते हैं and they want to lose some weight. So those are called as fat. And ये fat कैसे बढ़ता है? If you eat food that contain lots of fat, that time it will happen that the person becomes fat. Okay, so some part of our energy requirement is also fulfilled by fatty food such as oil, ghee and butter. Okay, तो अभी हमें एनर्जी तो चाहिए, तो कुछ एनर्जी हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, मच ऑफ द एनर्जी हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, एंड कुछ एनर्जी हमें फ़ैट से मिलती है. तो ऐसा नहीं है कि आपको पूरी तरह से फ़ैट खाना बंद करना है, बिकॉज वेन एवर यू ईट फैट you will get some kind of energy. So fat is also equally important for us. Okay, so some part of energy requirement, it will be fulfilled by the fatty food that we eat. Now what are the fatty food? When you eat oil, ghee, butter, this all things, they contain a lot of fat. Okay, and we get energy in the form of heat from the food we eat. अभी हमें energy कैसे मिलती है? Whatever food we eat, so from that food you get heat, है ना, आपको heat मिला, and that heat, it is getting converted into energy and you get that energy to do your work. Okay, and heat, it is measured in kilocalories. Now what do you mean by kilocalories? जो heat, अभी जैसे अभी temperature की बात होती है, राइट, तो टेम्परेचर को हम मेज़र करते हैं इन डिग्री सेल्सियस, राइट. वैसे ही हीट को मेज़र करने के लिए भी तो एक यूनिट चाहिए. जब आप नोट को काउंट करते हो, ओके, द रियल नोट दैट वी यूज़, उस नोट को आप रुपीज़ में काउंट करते हो ना, द सेम वे आप हीट को किस में काउंट करोगे? द हीट इज़ मेजर्ड इन किलो कैलोरीज. एंड इसलिए आप कभी अगर आपने देखा होगा कि अगर कोई फैटी इंसान when he says that he has become fat, तो he says कि कैलोरीज कम करनी पड़ेगी अब खाने के लिए. You might have heard this, right? तो कैलोरीज जब हमारे बॉडी के अंदर ज़्यादा हो जाती है, दैट टाइम फैट बढ़ता है and we become fat. Okay, hence the energy in the food item is also measured in the kilocalories. अब हीट को आप किलो कैलोरीज में मेजर कर रहे हो, इसलिए जो भी एनर्जी आपको लगेगी, जो भी एनर्जी आपके फूड आइटम में होगा, दैट इज़ ऑल्सो मेजर्ड इन किलो कैलोरीज. ओके, एंड चिल्ड्रन ऑफ ग्रोइंग एज, दे नीड टू गेट अप्रॉक्सीमेटली 2000 to 2500 कैलोरीज फ्रॉम द फूड दे ईट. अब जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, लाइक यू, द क्यूट वंस, उनको कैलोरीज की ज़रूरत होती है बिकॉज देयर बॉडी इज़ इन ग्रोइंग स्टेट, है ना, वो धीरे धीरे ग्रो कर रहे होते हैं, एंड दैट टाइम दे नीड दिस कैलोरीज. ओके, तो उनको कम से कम
2000 से 2500 कैलोरीज उनके खाने में उनको मिलनी चाहिए. ओके, नाउ सी नेक्स्ट वन इज़ प्रोटीन. अब जिसको बॉडी बिल्ड करनी होती है, यू माइट हैव सीन द पर्सन दोज हु गोज टू जिम. आपने देखा होगा वो एग खाते हैं, देन दे ईट वेरियस प्रोटीन्स ऑल्सो, है ना. तो प्रोटीन्स क्या करता है, प्रोटीन्स का काम है हमारी बॉडी को बिल्ड करना, हमारी मसल्स को बिल्ड करना. ठीक है, अभी अगर आपके घर में कोई ऐसा है जो जिम जाता है, आस्क देम कि आप प्रोटीन में क्या खाते हो. दे विल टेल यू दे ईट एग, they eat meats, they eat dry fruits, they eat milk and they eat various such things जिससे उनकी बॉडी बन जाए, because that food they eat they will contain proteins in large amount. Okay, so we need proteins for the purpose of growth. एक तो ग्रोथ के लिए हमें प्रोटीन की ज़रूरत है. Then repairing the wear and tear of the body. मतलब क्या हुआ, अब आपका जो सेल है ना, कभी कभी हमारी पूरी ह्यूमन बॉडी सेल से बनी हुई है, राइट. तो हमारा सेल्स जो है वो कभी कभी थक जाता है, या कभी कभी क्या होता है उसमें एबनॉर्मलिटीज़ आ जाती है. ओके, सेल्स के अंदर. हाँ, तो क्या होगा, वो सेल्स को आपके बॉडी से बाहर निकलना ज़रूरी होता है, बिकॉज व्हाट विल हैपन, अगर वो बाहर नहीं गया तो इट कैन बिकम कैंसरस सेल. ओके, कैंसरस सेल हो गया तो दैट कैन ऑल्सो लीड टू डेथ, राइट. तो ये नहीं होना चाहिए. एंड हैंस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी सेल्स आपके बॉडी में ख़राब हो रहे हैं दैट शुड लीव योर बॉडी. ओके, तो ये कैसे होगा, दैट शुड लीव योर बॉडी और रिपेयरिंग शुड हैपन टू दैट सेल. वो रिपेयर होना चाहिए सेल. एंड वो रिपेयर करने के लिए व्हाट आर बॉडी रिक्वायर्स, आर बॉडी रिक्वायर्स फूड इन द फॉर्म ऑफ मीट, fish, egg, dry fruits, milk. Okay, so our body need all this thing ताकि हमारी बॉडी, हमारा जो भी सेल ख़राब हुआ है हमारे बॉडी के अंदर, it does the wear and tear, it does the repairing of those cells. Okay, then for other life processes also protein plays an equally important role. Okay, see we get proteins from sprouts. Sprouts मतलब जो सीड्स देखते हो आप, चना हो गया, फिर मूंग हो गया, दोज आर कॉल्ड एज स्प्राउट्स. तो अगर आप वो सुबह सुबह स्प्राउट्स खाओगे, देन यू विल ड्रिंक मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स. व्हेन यू ईट मीट एंड एग्स इन आवर फूड, दैट टाइम क्या होगा, वी विल कंज्यूम मोर ऑफ द प्रोटीन. आपने देखा होगा जो जिम जाते हैं ना, वो सिर्फ प्रोटीन ही खाते हैं, बिकॉज दे डोंट वांट फैट. इसलिए वो सिर्फ प्रोटीन खाएंगे ताकि उनकी बॉडी बिल्ड हो, मसल्स बने उनका, राइट. सो इफ़ यू वांट टू बिल्ड योर बॉडी, टेक मोर, ड्रिंक मोर मिल्क, because that will give you more proteins. Okay, now see next is minerals and vitamins. now अभी minerals and vitamins की ज़रूरत क्यों है हमारे बॉडी को, to improve the body's resistance to disease and for other life processes the body needs vitamins, minerals and fiber in the diet. मतलब अब हमारे बॉडी में कोई भी डिज़ीज़ कभी भी हो सकती है, राइट. आपने कोविड देखा होगा वो कैसे फैल रहा है. सो दोज इंडिविजुअल जो मिनरल्स एंड विटामिन्स उनके बॉडी में सही लेवल में था, उनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई. बट जिनकी बॉडी वीक थी, द पीपल हु आर नॉट टेकिंग विटामिन्स एंड मिनरल्स इन दैट डाइट, उनके साथ क्या हुआ, उनकी बॉडी के पास इतनी एबिलिटी नहीं थी कि वो कोई भी डिज़ीज़ से फाइट कर पाए. अगर आप चाहते हो कि आप हर एक डिज़ीज़, आपको कोई डिज़ीज़ ही ना हो कभी, एंड आप हर एक डिज़ीज़ से फाइट कर सको, तो यू शुड कंज्यूम मोर ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स इन योर डाइट, बिकॉज इट इज़ नेसेसरी. एंड अगर आप विटामिन्स एंड मिनरल्स खाओगे तो योर बॉडी विल गेट रेजिस्टेंस टू द डिज़ीज़. एंड जो भी अदर प्रोसेसेस आपके बॉडी के अंदर हो रहे हैं, आपके बॉडी को इस सारे प्रोसेसेस के लिए योर बॉडी नीड्स विटामिन्स, मिनरल्स एंड फाइबर इन द डाइट. ओके, देन वी ऑब्टेन दिस न्यूट्रिएंट्स मेनली फ्रॉम वेजिटेबल्स एंड फ्रूट. अब आप सोच रहे होगे मिनरल्स एंड विटामिन्स आएगा कहाँ से. So we get this vitamins and minerals from the vegetables and fruit that we eat. See, अभी तक आपको पता नहीं था कि आपके आप जो खाना खाते हो उसके अंदर विटामिन्स है, मिनरल्स है, प्रोटीन्स है, फैट्स है, कार्बोहाइड्रेट है, राइट. अभी तक आपको नहीं पता था, बट नाउ यू नो कि आपके खाने का पर्पस क्या है, आप खाना क्यों खा रहे हो. बिकॉज योर बॉडी नीड एनर्जी, एंड उसको एनर्जी कहाँ से मिल रही है, द फूड दैट यू आर ईटिंग, है ना. तो हमारे बॉडी को अगर फाइट करना है कोई भी डिजीज़ से, सो वी शुड टेक मोर ऑफ मिनरल्स एंड विटामिन्स. एंड हमें कहाँ से मिलेंगे ये, फ्रॉम द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स.
Okay, then we require vitamins and minerals in small quantities but that deficiency can lead to various diseases. अब हमारे बॉडी को विटामिन्स एंड मिनरल्स छोटे छोटे क्वांटिटीज़ में चाहिए होता है, पर उसकी जो अगर अभी कभी आपके बॉडी में विटामिन्स एंड मिनरल्स की कमी हो गई तो उससे आपको अलग अलग डिजीज़ेस हो जाएंगे इफ़ यू आर नॉट टेकिंग appropriate amount of vitamins and minerals which are required by your body. Okay, so let us learn more about them. And the body needs several inorganic substances also. विटामिन्स एंड मिनरल्स छोड़ के भी बॉडी को कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की ज़रूरत होती है, सो यू विल कॉल देम मिनरल्स. एक तो विटामिन्स है, दूसरा जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज है दोज आर कॉल्ड एज मिनरल्स. ओके, सो यू विल बी स्टडिंग अबाउट सम मिनरल्स इन द table which is present in the next slide, and you will also come to know the functions of those minerals. Okay, you will also come to know what are the various sources of minerals. It means what कि आप कौन सी चीज़ें खाओगे तो आपको minerals मिलेगा आपकी बॉडी को, and your body will get that help to fight against the disease. Okay, so let's see and what are the disease which can be caused if you don't take appropriate amount of vitamins and minerals in your diet. Okay, let's see the table. See, minerals कौन से होते हैं. First is iron, second is calcium and phosphorus, third is iodine, fourth is sodium and potassium. Okay, so these are the 4 minerals. अब इनके functions क्या है. See, iron is a mineral and इसका function क्या है, carrying the oxygen to all parts of the body. जब आप iron खाते हो in the form of mineral from your food, you get oxygen because this iron का काम क्या है आपके बॉडी के अंदर. iron आपके बॉडी के अंदर जो भी ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा ना वो अलग अलग पार्ट्स तक लेके जाएगा आपके बॉडी में. Okay, now what are the sources from where do we get iron? When you will eat meat, spinach, apple, raisins मतलब किशमिश, पता है ना आपको. So those are called as raisins. तो जब आप ये सारी चीज़ें खाओगे तो you will get minerals. Okay, and अगर आप ये minerals नहीं खाते हो तो you can get a disease which is called as deficiency disease. मतलब अगर आपने आयरन को नहीं खाया तो that will be called as deficiency disease. आयरन की कमी होने से आपको अनेमिया का प्रॉब्लम हो सकता है. अनेमिया एक ऐसा कंडीशन है हमारे बॉडी में. सी, आयरन का काम है ऑक्सीजन कैरी करना हर एक पार्ट्स तक. तो अगर आप आयरन नहीं खाओगे, when your body will not have iron, तो आपके सारे बॉडी के पार्ट्स तक ऑक्सीजन नहीं जाएंगे, राइट. सो दैट इज़ द रीज़न आयरन खाना ज़रूरी है. सेकेंड मिनरल इज़ कैल्शियम एंड फॉस्फरस. अभी ये तो आपको पता है ना व्हाट इज़ कैल्शियम एंड फॉस्फरस. एंड कैल्शियम एंड फॉस्फरस का काम क्या है हमारे बॉडी में, टू स्ट्रेंथन द बोन्स एंड टीथ. दिस आर द फंक्शन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फरस, हमारे बोन्स एंड टीथ को स्ट्रॉन्ग करना. ओके, अब आपको कैल्शियम एंड फॉस्फरस मिलेगा कहाँ से. यू विल गेट द कैल्शियम एंड फॉस्फरस फ्रॉम मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड मीट. जब आप मिल्क एंड कोई भी मिल्क प्रोडक्ट पीते हो, जैसे कि व्हेन यू विल ईट कर्ड, then buttermilk, that time you will get calcium and phosphorus. When you will eat green leafy vegetables, that time you will get calcium and phosphorus. When you will eat meat, that time also you will get calcium and phosphorus. So you can eat anything, and if you don't take calcium and phosphorus, you will get a disease, and the disease will be in the form of you will get bad teeth, then ब्रिटल एंड वीक बोन. अब अगर ब्रिटल एंड वीक बोन हो गया तो व्हाट विल हैपन, यू नो, अगर आपको कहीं से लगेगी ना तो भी आपके बोन जो है वो फ्रैक्चर हो जाएंगे. सो दैट विल बी अ डिजीज़ इफ़ यू डोंट ईट कैल्शियम एंड फॉस्फरस इन राइट अमाउंट. नाउ नेक्स्ट मिनरल इज़ आयोडीन. अगर आप आयोडीन नहीं खाते हो प्रॉपरली तो आयोडीन से क्या होता है, आपका जो भी ग्रोथ होता है उसके रिस्पॉन्सिबल कौन है. इफ़ यू टेक अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ आयोडीन तो आपका ग्रोथ जो है वो सही होगा, एंड जो आपकी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस होता है ना वो भी सही चलेंगे. ओके, इट विल स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन बिकॉज आपकी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस होना इम्पॉर्टेंट है. इफ़ दैट डजेंट हैपन आपकी बॉडी अच्छे से काम नहीं कर पाएगी. ओके, सो ये काम कौन करता है, ये काम आयोडीन का है. आयोडीन आपको मिलेगा कहाँ से, यू विल गेट आयोडीन फ्रॉम द रेजिन्स. रेजिन्स मतलब किशमिश, देन बीन्स, फिश,
seafood. Whenever you will eat such foods, you will get iodine, and अगर आपके बॉडी में आयोडीन आ गया तो आपका ग्रोथ होगा, आपके बॉडी का केमिकल रिएक्शंस होगा. एंड द डिजीज़, अगर आप आयोडीन नहीं खाते हो अप्रोप्रिएट अमाउंट में, तो यू विल गेट अ डिजीज़, एंड द डिजीज़ विल बी कॉल्ड एज गॉइटर. ओके, गॉइटर एक ऐसा डिजीज़ है जो कब होता है, जब आपके थायराइड के अंदर दिस आयोडीन इज़ एब्सेंट. इसलिए हमारे डाइट के अंदर हमें आयोडीन इंक्लूड करना इज़ इम्पॉर्टेंट इफ़ यू डोंट वांट टू गेट दिस गॉइटर डिजीज़. ठीक है. नाउ फोर्थ मिनरल इज सोडियम एंड पोटेशियम. अब आपने तो ये सुना ही होगा सोडियम एंड पोटेशियम बहुत बार, राइट? सो दिस सोडियम एंड पोटेशियम इज़ ऑल्सो अ मिनरल विच इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी. अब ये सोडियम एंड पोटेशियम का हमारे बॉडी के अंदर काम क्या है? तो आपको जो वाटर आता है ना हमारे बॉडी के अंदर, वाटर बैलेंस करने का काम सोडियम एंड पोटेशियम का है. ओके, देन आप ये भी जो आपके मसल्स फंक्शन कर रहे हैं, आपका नर्वस सिस्टम फंक्शन कर रहा है, ये सारी चीज़ें एकदम अच्छे से फंक्शन करनी चाहिए, राइट? आपके मसल्स एंड आपका नर्वस सिस्टम. बिकॉज अगर आपका नर्वस सिस्टम अच्छे से वर्क नहीं करेगा तो आपका ब्रेन डेवलप नहीं होगा, एंड ब्रेन अच्छे से काम नहीं करेगा. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू टेक सोडियम एंड पोटेशियम इन योर डाइट. ओके, अब आपको सोडियम एंड पोटेशियम मिलेगा कहाँ से? यू विल गेट सोडियम एंड पोटेशियम फ्रॉम सॉल्ट, चीज़, लीफी वेजिटेबल, fruits and pulses. So whenever you will eat such food, you will get sodium and potassium which will help to maintain the muscles and nervous system. Okay, अगर आप सोडियम एंड पोटेशियम नहीं खाओगे अपने डाइट में तो यू विल गेट अ डिजीज़, एंड ये डिजीज़ में क्या होगा? आपके मसल्स अच्छे से काम नहीं करेंगे, बिकॉज आपके मसल्स एंड नर्वस सिस्टम को सही रखने का काम किसका है? इट इज़ ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम. Okay, so remember this, it is an important table. You should know what are the minerals, what are the functions of those minerals, what are the sources from which you will get those mineral, and what are the deficiency disease which can occur if you don't take such minerals. Okay, so I hope you have understood this various types of minerals. Okay, now next one is vitamin. हमने देखा ना minerals and vitamins के बारे में, we were studying about. हमारे बॉडी को अगर कोई भी डिजीज़ से फाइट करना है तो वी नीड टू टेक मिनरल्स एंड विटामिन्स इक्वली. तो मिनरल्स में हमने 4 मिनरल्स पढ़े. वन इज़ आयरन, सेकेंड वन इज़ कैल्शियम एंड फॉस्फरस, थर्ड वन इज़ आयोडीन, एंड फोर्थ वन इज़ सोडियम एंड पोटेशियम. सो दिस आर द मिनरल्स, एंड आपने इसके फंक्शन, सोर्सेज एंड डेफिशिएंसी डिजीज़ देखा है. नाउ अ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड that you have to write the sources of calcium and phosphorus. Then it can be asked that you need to give the function of iodine, or it can be asked that the deficiency disease will be given and you have to write when it will occur. So when the deficiency disease of inefficiency of muscle will occur, when you will not take appropriate amount of sodium and calcium in your diet. Okay, now see, next one is vitamin. अब vitamin जो है ना वो 2 तरीके के होते हैं. One is water soluble vitamin and the other one is water insoluble vitamin. Okay, तो अब जो वाटर soluble vitamin होता है उसमें आता है विटामिन बी एंड विटामिन सी. ठीक है, तो वाटर soluble है मतलब वो वाटर के साथ मिक्स कर जाएगा. आपको पता है सॉल्ट एंड वाटर, तो जब आप वाटर के अंदर सॉल्ट डालोगे तो वो ईजिली मिक्सअप हो जाता है ना. सो दैट इज़ कॉल्ड एज वाटर सल्यूबल. तो विटामिन के भी ऐसे टाइप है, जैसे कि विटामिन बी एंड विटामिन सी, आप जब भी उसको पानी में डिज़ोल्व करोगे, जब भी आप पानी में डालोगे इट विल गेट डिज़ोल्व. ओके, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? इसलिए दे आर कॉल्ड एज वाटर सल्यूबल विटामिन्स. नाउ दे आर थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द वाटर इन स्वेट एंड यूरिन. नाउ अब हमारे बॉडी से 2 तरह से वाटर बाहर जाते हैं. एक तो व्हेन यू यूरिनेट, एंड दूसरा जब आपको स्वेट आता है, पसीना आता है, उस वक्त भी हमारे बॉडी से स्वेट पानी निकलता है ना. सो हैंस अ रेगुलर सप्लाई ऑफ दिस विटामिन इज़ एसेंशियल, क्योंकि आपके बॉडी से पानी बाहर जा रहा है, एंड दैट इज़ द रीज़न कि आपको रेगुलर ये विटामिन्स खाने की ज़रूरत है. ओके, नाउ देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ विटामिन बी. विटामिन बी के टाइप्स क्या है? B1, B2, B3, B6, B4 एंड B5 नहीं है. हाँ, B3, देन B6, B7, 8 नहीं है, B9, एंड लास्ट वन इज़ B12. दिस आर द इम्पॉर्टेंट टाइप्स ऑफ विटामिन बी. इतने सारे टाइप्स के विटामिन बी है. ओके, नाउ वाटर इनसोल्यूबल विटामिन में आएगा विटामिन ADEK. यू कैन रिमेंबर दिस एज एडेक, ADEK, एडेक.
तो ये 4 विटामिन हैं जो वाटर इनसल्यूबल है, मतलब जब भी आप विटामिन को डालोगे तो इट विल नॉट गेट डिजॉल्व्ड, ठीक है. सो दिस विटामिन्स दे आर इनसल्यूबल इन वाटर बट दे आर सल्यूबल इन फैटी सब्सटेंस. तो जब आप ये विटामिन्स को फैटी सब्सटेंसेस के अंदर डालोगे तो इट विल गेट डिजॉल्व्ड, पर पानी में ये डिजॉल्व नहीं होगा. ओके, एंड ये जो विटामिन है वाटर इनसल्यूबल विटामिन, दे विल बी स्टोर्ड इन योर बॉडी, दे विल नॉट बी एक्सक्रीटेड आउट. जैसे कि आपने विटामिन बी एंड सी का देखा कि जो आप लोगे तो इट गेट्स यूरिनेटेड एंड स्वेट के थ्रू बाहर जाता है ना, बट दिस डजंट हैपन इन वाटर इनसल्यूबल. ये आपके बॉडी के अंदर स्टोर्ड ही रहता है हमेशा. ओके, एंड एज आई टोल्ड यू, आपको ये एक मेथड से याद करना है. एंड व्हाट आई टोल्ड यू, यू हैव टू रिमेंबर दिस एज एडेक, ADEK. Okay, you have to remember it like this, headache. These are water insoluble vitamin. Okay, now see the next one. This is the table, the same way we studied for minerals, the same way you will be studying about vitamins. Okay, now what are the sources, what are the functions, and what are the deficiency diseases of vitamins, you will be studying about that. Now first one is vitamin A. अब विटामिन A आपको हेल्प किस में करता है, आपकी जो आई साइट है, आपके आईज़ को प्रोटेक्ट करता है, आपके स्किन को अच्छे रखने के लिए हेल्प करता है, बोन्स एंड टीथ को हेल्दी रखने के लिए भी यू नीड विटामिन ए. तो अगर आप विटामिन ए नहीं खाओगे प्रॉपरली, बिकॉज ये आपके आईज़ को प्रोटेक्ट कर रहा है, आप नहीं खाओगे तो व्हाट विल हैपन, आपको नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा. इसका मतलब आपको डीम लाइट के अंदर दिखेगा नहीं इफ़ यू डोंट टेक विटामिन ए. ठीक है, नेक्स्ट डिजीज़ जो होगा वो हो सकता है इज़ ज़ेरोडर्मा. इसका मतलब ड्राई स्किन, आपकी स्किन एकदम ड्राई होने लगेगी इफ़ यू डोंट टेक अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ विटामिन ए. अब आपको विटामिन ए मिलेगा कहाँ से, यू विल गेट इट फ्रॉम वेरियस कलर्ड फूड, जैसे कि कैरेट, मिल्क, बटर, डार्क ग्रीन वेजिटेबल, स्वीट पोटैटो, डीप येलो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. ये सारे सोर्सेज हैं जहाँ से आपको विटामिन ए मिलता है. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज़ विटामिन B1. अभी हमने देखा था ना विटामिन बी के इतने सारे टाइप है, तो यू विल बी स्टडिंग अबाउट ऑल. सो विटामिन B1 में, B1 इट विल हेल्प यू इन द प्रॉपर फंक्शन ऑफ नर्व्स एंड हार्ट. अब हमारा हार्ट जो है वो पूरा 24 आवर्स काम करता है ना, तो उसको प्रॉपरली फंक्शन करने में एंड हमारे नर्व्स को प्रॉपरली फंक्शन करने का काम किसका है, इट इज़ द वर्क ऑफ विटामिन B1. अभी आपको मिलता कहाँ से है, यू गेट विटामिन B1 फ्रॉम मिल्क, फिश, मीट, सीरियल्स, नट्स एंड पल्सेस. ओके, एंड अगर आप विटामिन B1 नहीं खाते हो, यू विल गेट अ डेफिशिएंसी डिजीज़ जिसका नाम है बेरी, जिसको हम बोलते हैं नर्व डिसऑर्डर. ओके, और यू विल ऑल्सो गेट मसल वीकनेस एंड इनएफिशिएंसी इन द मूवमेंट ऑफ द मसल्स. तो अगर आप विटामिन B1 नहीं खाओगे तो यू विल गेट बेरी डिजीज़, जहाँ पे आपके नर्वल डिसऑर्डर्स आप देखोगे एंड आपके मसल्स वीक हो जाएंगे. ओके, नेक्स्ट वन इज़ विटामिन B9. विटामिन B9 आपकी बॉडी को चाहिए होता है फॉर द ग्रोथ ऑफ द बॉडी. आपके बॉडी के ग्रोथ के लिए विटामिन B9 इज़ इम्पॉर्टेंट. नाउ फ्रॉम वेयर डू यू गेट विटामिन B9, यू गेट इट फ्रॉम डीप ग्रीन वेजिटेबल, papayas and kiwis. Okay, so whenever you will eat this thing, you will get vitamin B9, and if you don't take this vitamin B9, your body will not grow properly, you will get anemia condition. It means the ability of carrying oxygen to each and every part of the body वो आपकी अच्छी नहीं होगी, it will be disturbed. तो इसको ही हम क्या बोलते हैं, अनेमिया. देन फॉरगेटफुलनेस, आप बार बार चीज़ें भूल जाओगे. देन स्लो मूवमेंट, आपका आई मूवमेंट स्लो हो जाएगा. ठीक है, आपका पूरा जो बॉडी का मूवमेंट है वो स्लो हो जाएगा व्हेन यू डोंट टेक अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ विटामिन B9. ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन इज़ विटामिन B12. B12 आपको हेल्प करता है आपके रेड ब्लड सेल्स को फॉर्म करने के लिए. ओके, सो B12 विल हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स. अब आपको मिलता कहाँ से B12, वेन एवर यू विल ईट meat and you will drink milk product, that time you will get vitamin B12. and B12 अगर आप नहीं लोगे you will get anemia, मतलब आपका जो बॉडी का ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है that will decrease. okay, now see next one is vitamin C. अब विटामिन C का काम क्या है, आपके बॉडी के टिश्यूज़ को प्रोटेक्ट करना. राइट, अब टिश्यूज़ क्या होता है, आपका बॉडी किससे बना हुआ है, सेल से. बहुत सारे सेल जब एक साथ आते हैं तो दे फॉर्म टिश्यू. जब बहुत सारे टिश्यूज़ एक साथ आएंगे दे विल फॉर्म ऑर्गन.
राइट, एंड फिर ऑर्गन सिस्टम बनेगा, एंड ये ऑर्गन सिस्टम से अ ह्यूमन बॉडी विल बी फॉर्म, राइट. दिस इज़ व्हाट द प्रोसेस गोज ऑन. तो आपके बॉडी को प्रोटेक्ट, आपके टिश्यू के प्रोटेक्ट करने का काम किसका है? इट इज़ द वर्क ऑफ विटामिन सी. अब विटामिन सी आपको मिलेगा कहाँ से? वेन एवर यू विल ईट आंवला, कीवी, ऑरेंजेस एंड अदर सिट्रस फ्रूट, मतलब खट्टे चीज़ें जब आप खाओगे दैट टाइम यू विल गेट विटामिन सी. ओके, देन कैबेज, टमाटो, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स. अगर आप विटामिन सी अप्रोप्रिएट अमाउंट में नहीं खाओगे, यू विल गेट अ डिजीज़ विच विल बी कॉल्ड एज स्कर्वी, जहाँ पे आपके जो टीथ के पास गम्स है ना, वहाँ से ब्लीडिंग होगी. ओके, देन आपका थायराइड ग्लैंड माल फंक्शन करेगा, अच्छे से काम नहीं करेगा, जिसके वजह से आपके बॉडी में जितने आयोडीन की ज़रूरत है ना, वो कम हो जाएगा. देन इट विल कॉज डिले इन द हीलिंग ऑफ द वुंड. अभी आपको कभी भी कहीं लगती है तो वो दो से 3 दिन में ठीक हो जाती है ना, बट वेन एवर इफ़ योर बॉडी इज़ हैविंग द डेफिशिएंसी, मतलब अगर आपकी बॉडी को विटामिन सी की कमी है, सो दिस विल टेक टाइम. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज़ विटामिन डी. विटामिन डी आपको कहाँ से मिलता है? डू यू नो? वी गेट विटामिन डी फ्रॉम सनलाइट. ओके, तो विटामिन डी क्या करता है? इट विल एब्जॉर्ब द कैल्शियम एंड फॉस्फोरस फॉर हेल्दी बोन्स एंड टीथ. आपके बोन्स एंड टीथ को हेल्थी रखने के लिए इट इज़ एसेंशियल दैट योर बॉडी हैव ऑल द कैल्शियम एंड फॉस्फोरस. तो ये एब्जॉर्ब करने का काम किसका है? इट इज़ द वर्क ऑफ विटामिन डी. ठीक है, अभी आपको मिलता कहाँ से है? जब आप सनलाइट से एक्सपोज करोगे खुद को. ठीक है, हमारे बॉडी के अंदर विटामिन डी फॉर्म होती है फ्रॉम सम सब्सटेंसेस इन मिल्क. जो मिल्क के अंदर कुछ ऐसे सब्सटेंसेस प्रेजेंट है जहाँ से आपको मिल्क मिल सकता है, सॉरी विटामिन डी मिल सकता है. ओके, देन यू गेट दिस फ्रॉम फिश, एग्स एंड बटर ऑल्सो. अगर अब आपके बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी, सो यू कैन गेट रिकेट्स. रिकेट्स मतलब आपके बोन्स जो है वो सॉफ्ट हो जाते हैं, एंड एनी टाइम अगर आपको कहीं लगेगी तो योर बोन्स विल गेट फ्रैक्चर्ड ईजीली. देन आपको पेन होगा एंड यू विल गेट फ्रैक्चर्स. ओके, देन विटामिन ई. विटामिन ई क्या होता है? स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द मेटाबॉलिज्म इनसाइड द सेल. मेटाबॉलिज्म करना मतलब आपका सेल जो है वो अच्छे से काम कर पाएगा इफ़ योर बॉडी इज़ हैविंग अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ विटामिन ई. एंड रिप्रोडक्शन होना, फिर आपके मसल सेल्स को एफिशिएंटली काम करवाना, ये सारे काम किसके हैं? इट इज़ द वर्क ऑफ विटामिन ई. अब आपको विटामिन ई मिलेगा कहाँ से? यू विल गेट द विटामिन ई फ्रॉम व्हीट जर्म, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, टेंडर लीव्स एंड वेजिटेबल ऑयल्स. ओके, एंड अगर आप विटामिन ई नहीं खाओगे तो व्हाट विल हैपन? आपके मसल्स वीक हो जाएंगे, आपको रिप्रोडक्शन के टाइम पे इट विल हैव प्रॉब्लम्स, आपको स्किन डिसऑर्डर्स हो जाएंगे. ओके, देन द लास्ट वन इज़ विटामिन के. अब विटामिन ए का काम है क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड. अब आपको अगर कहीं से लगती है तो ब्लड जो है वो कंटिन्यूसली बाहर आता है ना, एंड आफ्टर सम टाइम व्हाट हैपन्स? इट स्टॉप्स, है ना. तो अगर आपको विटामिन के की डेफिशिएंसी होगी, व्हाट विल हैपन? यू नो, आपका ब्लड जो है वो कभी स्टॉप ही नहीं करेगा, तो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होगी अगर आपको कहीं पे इंजरी होगी तो. नाउ फ्रॉम वेयर डू यू गेट विटामिन के? यू विल गेट द विटामिन के फ्रॉम ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, green cabbage, broccoli, sprouted pulses and yellow of the eggs. Okay, so these are the sources from you get this vitamin K. ठीक है, now see these are the various vitamins: carrot, then amla, lemon, egg, tomato, apple, sweet potato, orange, fish, cabbage, sprouts, meat, papaya, spinach. So these are the vitamins that helps your body to fight against any type of disease. It helps in the metabolism process, then it helps in the growth for your body. It provides you with all the essential nutrients and minerals that are required for your body for everything. आपने देखा यहाँ पे reproduction भी हो रहा है, देन आपके सेल्स को फंक्शन करवा रहा है, आपके हार्ट मसल्स को फंक्शन करवा रहा है, मसल्स को प्रॉपरली रख रहा है, राइट. सो यू नीड एवरी टाइप ऑफ विटामिन दैट इज़ मैंशनड हियर. एंड हमने देखा कि 2 टाइप के विटामिन प्रेजेंट होता है, राइट. वन इज़ वाटर सोल्यूबल एंड द अदर वन इज़ वाटर इनसोल्यूबल विटामिन. दिस आर द 2 टाइप्स ऑफ विटामिन. एंड मिनरल्स में हमने पढ़ा दैट देयर वर various minerals like iron, calcium and phosphorus, iodine, sodium and potassium. So these are various minerals that are required by your body, and
नाउ टुडे वी सॉ कि आपने देखा होगा कि अभी तक तो आपको पता नहीं था कि आपके खाने में इतनी सारी चीज़ें हैं जो आपको आपके बॉडी में इतने सारे जगहों पर हेल्प कर रही है. ओके, सो नेवर एवर से नो टू योर फूड, because whenever you will eat food it will give you benefit. Okay, so whenever we eat food it is for our benefit and it is not for others benefit, right? अगर आपको अपने बॉडी की ग्रोथ चाहिए, आपको ऐसा चाहिए कि आप कभी बीमार ना पड़ो, योर बॉडी शुड बी फिट एंड फाइन, है ना, आपको हमेशा एक्टिव रहना है, एनर्जी चाहिए, सो यू शुड ईट अ प्रॉपर डाइट, यू शुड ईट एवरीथिंग, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स. ठीक है, तो today we have studied about all these things and I hope you are clear with today's content and today's topic which we have studied. Now in the next lecture you will come to know more about the food that you eat and how you should eat it, what are the function sources. Like today we saw all of the things. In the next lecture we will continue with the same. Okay, so I hope you are clear with today's topic. Thank you everyone.